Hello class, the relational function was going on, and today I am going to do some different types of problem based on domain to finding the domain and range. Okay, so one question I taken, this is the question class. Actually, firstly I have to understand one thing is that this is the rational function. Okay, it is fx, it is gx, and here the fx is the linear function and the gx is also the linear function. So how will you do? How will you find domain and range? And for the domain class, that x should be real number, right? And y means how will you find the domain and how will you find the range? For the domain means we have to tell the range of x on which the x should be y should be real number. And for finding the range, we have to find the range of y, criteria of y when the x is a real number. This is the thing just we have to keep in our mind. x की वो वैल्यू जहाँ पर y real रहे and y की वो वैल्यू जहाँ पर x real रहे. These two things we have to just keep in mind. So here class for finding the domain, and so actually the problem is when the denominator becomes 0, then the y become infinity. So any value we can take except that value on which the denominator should not be 0. When denominator will be 0 when x is equal to minus 1 upon 2. So how will I find? The way is that class actually you have to learn this is all I am telling you for your understanding. But the thing is also you may learn the way. You have to learn the way. What is the way? How do I find the domain and range? तो क्लास इसमें आप देखिए लीनियर अपॉन लीनियर फंक्शन है आपको. इसमें आप क्या करिए 2x plus 1 does not equal to 0. ये आपका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, बस ये कंडीशन. तो आप क्लास x क्या आएगा? x आपका आ जाएगा -1 upon 2. तो क्लास का डोमेन आपका आ गया ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 upon 2. ओके, एंड फॉर द रेंज व्हाट आई विल डू, पहले इस फंक्शन को आप बना लो. ये सब्जेक्ट फॉर y है, सब्जेक्ट फॉर s के लिए आप इस फॉर्मूले को आप चेंज कर लो. प्लस ये हो जाएगा 2xy प्लस y and x minus 3 and 2xy minus x minus y minus 3 माइनस को आप ट्रांसपोज क्लास कर लीजिए. इट बिकम y plus 3, x taking common 1 minus 2y and y plus 3. x is y plus 3 1 minus 2y. अब क्लास x की आपको यहां से हम लोग फाइंड करेंगे, यहां से हम फाइंड कर सकते हैं y की वैल्यू. अब ये चीज 0 नहीं होना चाहिए ना, तो यहां पर जो क्लास का रेंज होगा वो आपका हो जाएगा ऑल रियल वैल्यू 1 minus 2y should not equal to 0. यहां पर y क्या आएगा? y आपका आएगा 1 upon 2, राइट? y does not equal to 1 upon 2, मतलब y 1 हाफ नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो इट इज एक्सेप्ट हाफ, मतलब सारी वैल्यू आएंगी क्लास यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि आप एक एलिमेंट को यहाँ पर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट 1 upon 2. दिस इज द वे फॉर फाइंडिंग डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन. Now class for this question, y is equal to x upon 1 plus x square. We have to find the domain and range. Class, you see in the means what the idea we have, what we have. The idea is actually class, the idea of this question is that the denominator should not be 0, but for any value of x the denominator cannot be 0 because it is a square function. Square means positive function. प्लस ये स्क्वायर फंक्शन है, ये 1 है. ठीक है, तो आपका जो x स्क्वायर है ये आपका, आप यहाँ पर x की कोई वैल्यू भी प्लेस करेंगे आपको वैल्यू मिलेगा पॉजिटिव. अगर आप पॉजिटिव को पॉजिटिव से ऐड करेंगे तो आपको ये वैल्यू ऑलवेज रहेगा 0 और मोर देन 0 रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा. और इवन अब तो ये मोर देन 0 बिकॉज़ +1 है ना, तो ये ऑलवेज रहेगा आपका मोर देन 0. ठीक है, तो यहाँ पर x आप कोई वैल्यू ले सकते हैं ना, ऊपर कोई मैटर नहीं है, ऊपर 0 आता है उसमें कोई आपको इफेक्ट नहीं है, बिकॉज 0.something 0 हो जाएगा, 0 इज अ रियल नंबर. तो क्लास यहाँ पर जो इसका डोमेन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा रियल नंबर. यहाँ पर ये आइडिया था. नेक्स्ट अब आप नाउ यू गोइंग टू फाइंड द रेंज. अब आप रेंज के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर एक आइडिया आपको यहाँ पर लर्न करना पड़ेगा. पहले आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे.
तो आपका ये आ जाएगा y एंड yx स्क्वायर इज इक्वल टू x, ओके, एंड द yx स्क्वायर माइनस x प्लस y इज इक्वल टू 0। क्लास ये एक्चुअली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, ठीक है ना, जहां पर क्लास ये a हो गया आपका, और इसको आप लोग शिफ्ट कर लेते हैं हम लोग, प्लस y यहां लिखते हैं, माइनस x यहां पर लिखते हैं, और यहां जो क्लास ये आपका सॉरी माइनस x एंड प्लस y ये आपका b हो गया, तो यहां पर क्लास b की वैल्यू हो जाएगी -1, यहां पर ये क्लास हो जाएगा a और c आपका हो जाएगा y, ओके। अब क्लास हमको y की रेंज निकालना है, तो x जो है वो रियल होना चाहिए, तो यहां पर x रियल, अब इस क्वाड्रेटिक में x रियल कब होगा, x क्वाड्रेटिक में अगर आपसे कंपेयर करेंगे x स्क्वायर प्लस bx प्लस जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको x रियल होना, x रियल कब होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से मोर देन होती है। जब x आपका रियल नंबर होता है उस केस में, जब आप नेचर ऑफ रूट्स आपको स्टडी किया होगा, नेचर ऑफ रूट्स में आपको x फाइंड करना है रियल वैल्यू, तो इसमें क्या होना चाहिए, जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से मोर देन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे डेल्टा मींस डिस्क्रिमिनेंट दैट इज इक्वल टू मोर देन एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू मोर देन एंड इक्वल टू 0। अब यहाँ क्लास b क्या है, b आपका -1 है, -4a आपका 4a आपका y है क्लास, और c आपका y है, मोर देन एंड इक्वल टू 0 क्लास। अब इस रेंज से हम लोग y फाइंड करेंगे, जो y जो आएगा वो आपको देगा रेंज, कैसे फाइंड करेंगे ध्यान दीजिए, इट इज 1, इट इज -4y स्क्वायर मोर देन एंड इक्वल टू 0, क्लास यहाँ ध्यान दीजिए आप, मैं इस क्लास को इरेज कर रहा हूं। अब क्लास देखिए यहां पर क्या होगा, 1 -4y स्क्वायर मोर देन एंड इक्वल टू 0। क्लास पहले आप क्या करिए, पहले आप इसमें क्लास देखिए आपको पहले इसमें से माइनस कॉमन लेना है, ठीक है, क्योंकि आपको इस एक्सप्रेशन को x माइनस a एंड x माइनस b के फॉर्म में लेकर आना है, लेस देन एंड इक्वल टू या मोर देन एंड इक्वल टू 0 की फॉर्म में हो, यहाँ पर साइन कुछ भी हो, तो आपने पहले माइनस कॉमन लिया, तो यहाँ पे ये हो गया 4y स्क्वायर -1 लेस देन मोर देन एंड इक्वल टू 0। जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन यहाँ पर रिवर्ट हो जाएगा, इट इज लेस देन एंड इक्वल टू 0। अब क्लास अभी भी नहीं हो पाएगा, अब इसमें से आपको 4 कॉमन लेना पड़ेगा, जब आप 4 कॉमन लेंगे नाउ इट इज 1/4 लेस देन एंड इक्वल टू 0, ठीक है, y स्क्वायर माइनस 1/4 0/4 इट इज 0 हो जाएगा, ठीक है, तो y स्क्वायर माइनस 1/4 लेस देन एंड इक्वल टू 0। अब इसको आप ब्रेक करेंगे a प्लस b a माइनस b, a प्लस b एंड a माइनस b लेस देन एंड इक्वल टू 0। अब प्लस मैंने आपको क्या अंडरस्टैंड कराया था, अब इसमें आप क्या करेंगे, यहां पर y की वैल्यू क्या है क्लास, -½ है, यहां पर हाफ है, तो आप यहां लिखेंगे -½ एंड हाफ, राइट, प्लस माइनस प्लस, क्लास ये नेगेटिव है, लेस देन 0 है आपका, तो रेंज आपकी आ जाएगी, तो आपकी क्लास y की वैल्यू क्या आ रही है, y की रेंज आ रही है क्लास -½ टू हाफ, ओके, -½ टू हाफ, ये क्लास आपका रेंज आ गया, इट इज द रेंज फॉर y। Now class C, to finding the domain range of this type of function, class you see it is the root x square minus 4, so content inside the root that should be equal to more than and equal to 0. So for finding the domain, it is x square minus 4, it is more than and equal to 0. From this way we can find the range of x, and this same question also I done in the last problem, it is break as x plus 2 x minus 2। प्लस एक बात आपको ध्यान ये रखना है कि इस वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, दिस थिंग आल्सो एक्सप्लेन यू इन द आई थिंक जस्ट बिफोर दिस वीडियो, द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज -2, इट इज 2, ओके, सो -2 छोटा है 2 बड़ा है ना, सो दैट दिस ब्रैकेट शुड बी इन द इंक्रीजिंग फॉर्म, ये नंबर इंक्रीजिंग में होना चाहिए, ओके। अब आप यहां पर एक्सप्रेस करेंगे, पुट करेंगे 2 एंड -2, ओके, इट इज प्लस माइनस प्लस, मेथड्स ऑफ इंटरवल, इट इज मोर देन एंड इक्वल टू 0। So more than or equal to 0 means it is positive, so the value will be 2 to infinity close interval, because यहाँ पर close interval union minus infinity to -2, right? This is the domain of the function. It's very simple class, you all can do।
But the good thing to be learned here, that is the range for this function. Okay, it's a new thing here. So for finding the range, you see here class, as we know, the y is equal to root x square minus 4. Means there is a root is there. So the value of y always will be more than and equal to 0 according to this condition. Means इसकी वैल्यू क्लास में नेगेटिव तो हो नहीं सकती है. आप कभी रूट फाइंड करें और वैल्यू नेगेटिव है, इट इज कैन नॉट पॉसिबल. ओके, सो y will be always more than and equal to 0. क्लास पहले तो ये हमने अपने को डिसाइड कर लिया कि अगर इस तरह का y है, मैथ्स क्या बोलती है, मैथ्स टेल्स इज दैट लॉजिक्स क्या है यहाँ पर, रूट्स की इसकी वैल्यू हमेशा रहेगा पॉजिटिव, 0 और मोर देन 0. ओके क्लास, ये हमने पहले अपने को फ्रीज कर लिया. अब उसके बाद अब हम प्रोसेस पर आए. प्रोसेसिंग ये है, इफ यू आर स्क्वायरिंग सो इट इज y square x square minus 4, राइट, एंड x square is equal to y square plus 4. ओके क्लास, इट इज x square. रेंज के लिए हम किसको फॉलो करते हैं, हम किसकी हेल्प से फाइंड करते हैं, रेंज फाइंड करेंगे x की हेल्प से, है ना. देखिए क्लास, यहाँ पर डोमेन फाइंड कर रहे हैं. डोमेन आपको x से आपने फाइंड कर लिया, बट आपको और अब यहाँ पर हम जब रेंज में जा रहे हैं तो आपको x के बारे में पता होना चाहिए. अब x स्क्वायर है तो x स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर ऑलवेज मोर देन और इक्वल टू 0 होता ही है ऑब्वियसली, ये मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था. अब इसमें मीनिंग इज दैट x स्क्वायर की वैल्यू क्या है, y स्क्वायर प्लस 4, y स्क्वायर आल्सो मोर देन और इक्वल टू 0. ओके, नेक्स्ट इज y स्क्वायर मोर देन और इक्वल टू -4. अब क्लास यहाँ पर आप y की कोई वैल्यू भी आप प्लेस करेंगे, ये कंडीशन ऑलवेज ट्रू रहेगी. मतलब आप लिखते हैं यहाँ पर, मैं लिखूंगा y बिलोंग्स टू r, दिस कंडीशन इज ट्रू फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r. दिस कंडीशन इज ट्रू, मींस द कंडीशन 1 is true for all y belongs to r. बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि y की वैल्यू सिर्फ 0 से बड़ी आएगी. मतलब जो रियल नंबर पर जो आपका y है, अब y के आगे तो वैल्यू आएगा, बट जो आपका बैक वाला वैल्यू है वो कमेंट नहीं कर रहा है. सो द रेंज इज ओनली विल बी 0 to infinity. दिस इज द फाइनल आंसर क्लास.